اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم منیر شاکر تصور حیات یا تصور زندگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل پہلے بات کر چکا ہوں ایک تصور پر اللہ کا تصور مختلف مذاہب میں کیا اور قرآن کیا کہتا ہے۔ اگلا اس کا تصور جو تصور حیات پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے اللہ اور انسان کا باہمی تعلق کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، قرآن کیا بتاتا ہے۔ ہمارا تو وہی ہونا چاہیے نا انسان کا جو قرآن بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی ان صفات پر ایمان لانے سے فائدہ کیا؟ پہلے بات ہوئی نا کہ اللہ کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ صفات کی بات ہوگی، اسماء الحسنہ کی بات ہوگی، صبغۃ اللہ کی بات ہوگی، جو قرآن سے شروع میں نام لکھے ہوتے ہیں اللہ کے اسماء الحسنہ، وہی اس کی صفات ہے۔ خدا کی ان صفات پر ایمان لانے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہے، دوسرا اسے انکار کرتا ہے۔ اس اقرار اور اس انکار سے ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی پیکر روح خداوندی کا حامل ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، انسانی پیکر ہو گیا، بدن ہو گیا، دوسرا جو اس کے اندر ہے اس کو روح خداوندی بات سمجھانے کے لیے قرآن اس کو نفس کہتا ہے، جسے انسانی ذات ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات میں اس کا امکان رکھ دیا گیا ہے، یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ اعلیٰ حد بشریت ان خدائی صفات کو اپنے اندر اجاگر کرتی جائے۔ یہ بندے کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں بندہ بھی ان میں ڈھلتا جائے، یہ صلاحیت بندے کے اندر رکھ دی ہے۔ یہی وہ خدا کا رنگ ہے جس سے حسین تر رنگ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ بقرہ کی 138 نمبر آیت ہے۔ اس اعتبار سے خدا کی یہ صفات انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ایک خارجی معیار، آبجیکٹو سٹینڈرڈ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ ہمارے لیے ماڈلز ہیں وہ صفات، ان کو دیکھ کر ہم نے ان جیسا بننا ہے۔ اعلیٰ حد بشریت ہی بن سکیں گے کیونکہ اللہ کی صفات تو اس کی اپنی ذاتی ہیں اور لامحدود ہیں، بندے کی دی ہوئی ہوں گی اللہ کی طرف سے اور اس کی محدود ہوں گی۔ یہ وہ آئیڈیل ہے جس کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے، یہ وہ معیار ہے جس پر وہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خارجی معیار پر ہر آن اپنے آپ کو ماپتا جاتا ہے اور اس طرح اعلیٰ وجہ البصیر پرکھتا جاتا ہے کہ اس کی ذات کی کس حد تک نشو و نما ہوئی ہے۔ بندے کی ذات کی نشو و نما یہی اسی نہیں آگے کام آنا، جس کی زیادہ نشو و نما ہوگی وہ آگے منزلیں اس کی آسان ہوگی۔ کیسے پتہ چلے اس کی؟ فی الحال یہ آپ نے دیکھنا کہ وہ جو اللہ کی صفات ہیں اس کے اندر کس حد تک اس سے منعکس ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس میں ہنوز کیا کمی ہے اس سے پرکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کس موقع پر خدا کی کون سی صفت کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ ایسے موقع پر انسان کی طرف سے بھی اسی قسم کی صفت کا ظہور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، وہ بھی کوئی آیت آتی ہے آخر میں اس صفت کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ جو آپ نے قرآن پڑھے تو آپ کو یہ چیز جگہ جگہ نظر آئے گی، آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت کا بیان کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو بات ہوتی ہے وہ اس پر اس صفت جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس نے منطبق ہونا ہوتا ہے، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ انسان نے ایسے موقع پر کیسا ظاہر کرنا ہے، کون سی صفت نے سامنے آنا ہے، وہی جو اللہ والی ہے وہی بندے والی صفت ہوگی۔ اس سے یہ متعین ہوتا ہے کہ خارجی واقعات اور حوادث پر انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جس طرح انسان کے لیے صفات حسنہ کا حامل ہونا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ کسی واقعہ پر انسان کی طرف سے اسی صفت کا ظہور ہو جو اس کے لیے مناسب اور موزوں ہے۔ جو بھی واقعہ ہو، آگے بات کرتا ہوں واضح ہو جائے گی، اس کا ظہور ویسے ہی ہونا چاہیے، اس صفت کا ہی ظہور ہونا چاہیے۔ شقی القلب ظالم پر جس کے دل میں نہ احساس ندامت ہو نہ آرزو اصلاح، طرز کھا کر اسے کھلا چھوڑ دینا مظلوم انسانوں پر بے انتہا ظلم ہے۔ ایک انتہائی ظالم آدمی اس کو یہ کہہ دینا کہ کوئی نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اپنی طرف سے ہی، جیسے میں واضح بتاؤں
नवाज शरीफ के साथ हुआ, मलून काजी फाइज साहब ने कहा तौबा का दरवाजा खुला है, उसको एयरपोर्ट पर ही उसके तमाम गुनाह, उसके तमाम केसेस खत्म कर दिए गए, वहीं सब कुछ उसको इंसाफ मिल गया। और साथ ही कहा कि तौबा का दरवाजा, उसने ना खुद तौबा की इजहार किया, ना उस पर कोई मलामत का इजहार किया, ना उसने ये कोई अहद किया कि मैं आइंदा ये करप्शन नहीं करूंगा। लेकिन काजी लानती मलून ने उसको ये कहकर, ये मैं बात समझाना चाहता हूँ कि वो क्या लागू होता है उस वक्त, क्या लागू करना चाहिए था, वो अल्लाह की जो सिफ्त है। लेकिन जहां अफू दरगुजर से खुशबार नताज मुतवक्के हो, वहां बदला लेना जुल्म के मुतरादिफ हो जाता है। ये सवाबदीद है, लेकिन देखिए आप इसका आगे फर्क मजीद मैं बताता हूँ। उजलात यानी कि मसल्स, आपकी चोट आस्ता आस्ता मालिश से ठीक हो जाती है, समझ गए। मसल पर चोट लग गई, को दबाया गया आपका, तो वो मालिश से, तेल लगाने से, मालिश करने से वो ठीक हो जाए। लेकिन टूटी हुई हड्डियों को सख्त लकड़ी की तख्तियों से कस कर बांधने की जरूरत होती, ये फर्क है। अगर हड्डी को जरब लग गई, हड्डी टूट गई, तो फिर तेल की मालिश से वो ठीक नहीं होगी, वो आपको वो लकड़ी की तख्तियां बांध के करना होगा, जैसे हम गर्म पट्टी अब कहते हैं या प्लस्तर कहते हैं, करते हैं, ये फर्क है। या प्लस्तर लगना हो, वहां अफो दर गुजर तौबा नहीं है। अगर बस अपनी तरफ से, वो तो खैर बिल्कुल मलून आदमी, गलीज आदमी, गंदे आदमी का जिक्र यहाँ मैंने कर दिया। इसे हाँ आप देखिए, ये कितनी अहम बात है। लेकिन टूटी हुई हड्डियों को सख्त लकड़ी की तख्तियों से कस कर बांधने की जरूरत होती है, इसे जबारियत कहते हैं। ये तख्तियों से बांधना लकड़ी, इसको जबारियत कहते हैं। जरा की इन लकड़ियों को जबायर कहते हैं। आप देखिए अरबी के जो रूट होते हैं, मादा होता है, उसका जो मानी होते हैं, वो उसके जो इतने लफ्ज भी आगे बनेंगे, उससे मानी उसमें आते जाएंगे। जबार, अल्लाह ताला जब्बार है, क्या करता, क्या जबार का मानी है, हम तो जाबर लेते हैं, वो सख्त, हम गिर, कुछ है जात, ऐसे ये मजहब का तस्वर, आगे बात आएगी। आप देखिए जबायर, उन लकड़ियों पर जो है तख्तियां, जो उस हड्डी को जोड़ने का मददगार साबित होती हैं, फायदेमंद होती हैं, वो उसे जबायर कहते हैं। और वहां से ये लफ्ज जबारियत या जबारियत से जबायर। कुरान करीम इन सफात खुदाबंदी और उनके मौके ज़हूर व अतलाक को बड़ी शर बस्त से बयान करता है, जब ताकि वो जहाँ एक फर्द की ज़ात की नशोनुमा का मेयार बने, वहीं ये भी बताएं कि इंसान की तरफ से किस मौके पर किस किस्म का रद्द अमल होना चाहिए। वो आयात आपको बता देती है, जो सिर्फ आगे जिक्र हुई है कि उससे वहां किस सिफ्त का इज़हार होता है और किस सिफ्त का इज़हार होना चाहिए अल्लाह ताला की। इसी से एक और अहम हकीकत सामने आती है, ये बात बहुत है। मजहब में खुदा का तस्वर एक मुस्तबद बादशाह और मुतलकुल अनान आमर डिक्टेटर का होता है। मजहब में हमारा भी ये बना, क्योंकि हम मजहब के पैरोकार हैं। इस्लाम को हमने मजहब बना दिया है, जिसके तमाम फैसले उसकी मर्जी पर मुनसर होते हैं और उनमें किसी कायदे और कानून का कोई दखल नहीं होता। वो खुश हो गया तो मुजरम को खिलत बख्श दी, नाराज हो गया तो बेगुनाह को हवाला दारो रसन कर दिया, फांसी दे दिया। इंसान की खैरियत इसी में है कि जिस तरह हो सके उस खुदा को खुश रखे जो इस तरह का डिक्टेटर है। वो इसकी खुशनुदी मजाज हासिल करने के लिए तरह तरह के जतन करता है, उसके हजूर नजराने गुजारता है, उसके मुकर्रबीन के वसीले हासिल करता है। हाँ, ऐसे ही करते हैं ना हम, ये अल्लाह वाले हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, ये दरबार हैं, ये अल्लाह के बहुत करीब हैं, नजर ये खुश होंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, उसको कह के खुश करवा देंगे। उन अहकाम की फर्मा बरदारी से इंसान को अपना कोई फायदा नहीं होता। मजहब ये बताता है, मजहब आपको ऐसे काम बताता है, ऐसी रस्म रिवाज, जो कुछ हम कर रहे हैं आप ये समझे, उससे क्या कहते हैं हम, वो इनसे मजहब का जो है वो बंदे, अपना बंदे का कोई फायदा नहीं है उसमें। और नवाफल पढ़ते जाए, तस्बीहात का क्या फायदा हुआ जी, आप आखिरत पर छोड़ दिया ना, आखिरत पर आपको जन्नत मिलेगी, इधर कुछ नहीं है। लेकिन जो दीन है, कुरान का बताया दीन, वो ये नहीं, इधर ही नतीजा बताता है, नतीजा बताता है पहले कि इसका ये नतीजा निकलेगा और इधर ही निकलेगा। उससे मकसूद सिर्फ खुदा की खुशनुदी हासिल करना होता है। दूसरी तरफ ईसाइयत है, जहाँ खुदा का तस्वर एक रकीकुल कल्ब बादशाह का है। इस्लाम कुरान क्या कहता है, असूल वाला है, कायदे वाला है, कानून वाला है। वहां ऐसी कोई बातें नजर नजराने नहीं चलते, कोई सिफारिश नहीं चलती। ईसाइयत का मजहब, जहाँ खुदा का तस्वर एक रकीकुल कल्ब बाप का है,
वहां भी कायदे और कानून का कोई वास्ता नहीं, हमारा भी कोई नहीं कानून कायदा समझते हैं हम। अगर कहने कायदे और कानून की बात करें तो हम सीधा कह देते हैं अल्लाह को तुमने अल्लाह को पाबंद कर दिया है, अल्लाह को पाबंद है किसी का, वो इस तरफ चले जाते हैं। और ईसाईयत में भी यही बात है। वहां नजात का मदार खुदा के रहम पर है, हम भी यही कहते हैं, रहम पर है उसके। कुरान ने ये गलत है, हम जो कहते हैं ये गलत है, कुरान का ये तस्वर नहीं है। कुरान ने आकर इस तस्वर की भी तरदीद की और कहा कि खुदा ने अपनी लामहदूद कुव्वतों और बेइंतहा इख्तियारात के बावजूद हर काम के लिए कायदे और कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं, और वो सब कुछ उन कवानीन के मुताबिक करता है। ये कवानीन इस कदर अटल हैं कि इनमें कभी तब्दीली नहीं होती। फलन ताजेदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन ताजेदा ले सुन्नतिल्लाह तहवीला। ये फातर की 43 नंबर 43 नंबर आयत है। कानून के मानी ये है कि जहां हर बात काज एंड इफेक्ट, इल्लत और मालूल की जंजीर में जकड़ी हुई है, यानी अगर फलां काम करोगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा, अगर इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो इसका अंजाम ये होगा। कुरान का अंदाज ही ये साइंसी है और मैथमेटिकली है, अगर ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, नहीं मानोगे तो ये नुकसान उठाओगे, और बताता है कि पीछे उन्होंने ये नुकसान उठाए, और आइंदा करोगे आइंदा भी वही नुकसान उठाओगे। उसने इंसान को ये तमाम कवानीन बता दिए और उनको समझने की सलाहियत बंदे के अंदर रख दी, अच्छी तरह समझा दिए, समझने की सलाहियत भी रख दी, समझा भी दिए। कुरान ने इस पर वाज़ेह कर दिया कि इस कानून पर अमल करने से उसका ये फायदा होगा और उसकी खिलाफ वर्जी से उसका बंदे का ये नुकसान होगा। ये सब कुछ बता देने के बाद उससे कह दिया कि अब तुम्हारा जी चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर लो और जी चाहे तो उसके खिलाफ चले जाओ। ये है अल्लाह का, अल्लाह की जात, अल्लाह के बारे में आप अंदाजा लगाएं तो गौर करें बस, और बात सारी वाज़ेह हो जाती है। जिसका जी चाहे तो उसके खिलाफ चले जाए, बात बता दी, वाज़ेह सामने रख दी। इन्ना हादैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, ये दहर की 3 नंबर आयत है। हमने उसे रास्ता दिखा दिया, अब वो चाहे इसे इख्तियार करे और चाहे इससे इनकार कर दे। वो सही रास्ता इख्तियार कर लेगा तो उससे उसी का फायदा है, हमारा कुछ नहीं संवरेगा, अल्लाह का कुछ नहीं संवरेगा। गलत रास्ते पर चलेगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो गलत काम करता है। लाहा मकासबत व लाहा मक्तसबत, सूरत बकरा की 286 नंबर है। यही वजह है कि खुदा किसी बात को हुक्मन और जबरन नहीं मनवाता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आप समझे जमहूरी है या आज़ादी अजहार की आज़ादी है कि अल्लाह किसी को हुक्मन और जबरन मजबूर नहीं करता। जो अगर हुक्म भी है उसका, तुम्हें अला वजल बसीरत बताएगा, उसकी मंतक बताएगा, हिकमत बताएगा, गर्ज़ व गायत बताएगा कि इसमें तुम्हारा ये फायदा है। वो जो कुछ कहता है मशवरतन कहता है। उसने कुरान नाज़िल करने के बाद कह दिया वकुल्लिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। ये काफ की 29 नंबर है। इनसे कह दो कि हक तुम्हारे रब की तरफ से आ गया, आप जिसका जी चाहे इसे मान ले और जिसका जी चाहे इसे इनकार कर दे। देखिए कितनी आज़ादी है, कितनी बड़ी आज़ादी है। फिर हम कहें कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है वो हिदायत देता है, अल्लाह पर डाल देते हैं। अल्लाह ने नहीं तौफीक दी फलां बंदे को, मुनाफिकों को अल्लाह तौफीक नहीं देता, काफरों को अल्लाह तौफीक नहीं देता। ये कितनी बड़ी आज़ादी है, कितनी बड़ी आज़ादी। वो बात को समझते नहीं उस बात को। यहाँ कह रहा तुम्हारी मर्जी पे है, तुम्हारे सामने रख दी, ये उसने वादा किया, वो आपके सामने आ गई थी, अंबिया कराम के जरिए, किताबों के जरिए सामने आ गई। ज़ाहिर है कि जिस बात के मानने ना मानने का फैसला इंसान पर छोड़ दिया गया हो, अगर वो साहब अकल होश है तो वो सोच समझ कर फैसला करेगा। लिहाजा कुरान की रूह से ईमान अंधे यकीन, ब्लाइंड फेथ का नाम नहीं, ये उस जहनी और कल्बी इत्मीनान कन्वेक्शन का नाम है जो इंसान को अला वजल बसीरत हासिल होती है। यही वजह है कि उसने मोमिनीन की खुसूसियत ये बताई है। हमारा मान तो ऐसे ही मुसलमानों के घर पैदा हो गया, मुसलमान चले आ रहे हैं, क्यों है कोई नहीं सोचता। क्या कहते हैं अल्लाह ताला इस चीज के बारे में, ये गौर सोचने के बारे में, जिसका जी चाहे माने, जिसका ये है जी फुरकान की 73 नंबर है, सूरह फुरकान 73 नंबर आयत। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयातिहिम लम यखिरू अलैहा सम्मम व
उमयानन, उमयाना, ये वो लोग हैं कि जब औरतों और खुद उनके रब के याद भी उनके सामने लाई जाती हैं तो वो इन पर बहरे गूंगे बनकर नहीं गिर पड़ते, उन्हें अक्ल व बसीरत से कबूल करते हैं। ये भी ज़ाहिर है कि जब अमाल के नतायज कायदे और कानून के मुताबिक मरतब होते हों तो उसमें किसी के फिदिया देकर छूट जाने या सिफारिश से रहा हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह कानून और कायदे वाला है, कानून और कायदे में ये चीज नहीं चलती। आप किसी जज किस बंदे को देख बड़ा ईमानदार है तो वहां चलती है बात, उसको इसीलिए ही कहते हैं यार वो किसी की बात नहीं सुनता, बस वो जो ठीक है वही वो करेगा, वो नहीं मानेगा बात। होते हैं यहाँ चंद बंदे, चंद अफसर, आप नाम पर जो होते हैं उनका पता चलता है सब कुछ। अगर आप अपनी उंगली देखें, अल्लाह का कानून, अल्लाह कैसा, अगर आप अपनी उंगली आग में डाल लें और उसके बाद 1000 रुपया देकर भी चाहें कि जलने का दर्द आपकी जगह किसी और को हो जाए तो ये नामुमकिन है। समझ आई बात? इसाले स्वाब को भी इधर से ले लें और जादू टोने को भी आप इधर से ले लें, वो दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकता। अगर आप सैंखियां खा लें तो चाहे आप गवर्नर जनरल सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश भी क्यों ना ले आए, आप उसके मुज़र असरात से महफूज नहीं रह सकते। तो उसका एक ही तरीका है और वो ये कि आप अल्लाह के उस कानून की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू कर, अल्लाह के कानून की तरफ रुजू करना है जो जिसके मुताबिक जलने के दर्द को आराम और सैंखियां के मोहलक असरात से हिफाजत मिल सकती है। कुछ ही जल क्या करते हैं, बुरनाल लगाते हैं या इस किस्म की जो भी दवाइयां हमने बनाई हैं, ये बंदों ने बनाई है ना, बनानी है, ये उसने इंसान के अंदर सलाहियत रखी हुई थी ना कि ये होगा तो उसका ये इलाज होगा, वो भी उसने पैदा किया, उस इलाज को हमने दरियाफ्त करना है, किसी और ने नहीं करना। यही रहमत है। जब कहते हैं ना अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो तो उसकी रहमत का मतलब यही है कि जो भी तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है उसका इलाज उसने रखा है, तुम्हें बताया है, तुम समझने की ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें मिल जाएगा। हो ही नहीं सकता कोई तकलीफ पहुंचे और उसका इलाज ना आपको, उसका इलाज ना हो, जरूर उसका इलाज होगा। अगर अभी नहीं मिल रहा तो साइंस तहकीक कर रही है, मिल जाएगा। जैसे कैंसर है, उसका इलाज भी हो जाता है कि एक हद तक हो जाता है, फिर लाइलाज हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि बीमारी जब बढ़ मुमकिन है आइंदा इसका भी इलाज दरियाफ्त हो जाए। इंसान को तकलीफ और राहत, ये बड़ी अहम बात है, इंसान को तकलीफ और राहत उसके अमाल के नतायज में खुदा के कानून के मुताबिक मिलती है। तकलीफ और राहत उसका अपना अमल होता है, वो अमल पहले करता है, जो अल्लाह का कानून उसके पीछे पीछे चलता है, वही कानून लागू हो जाता है। आग है, आग का काम जलाना है, आपने उंगली ऊपर की जल जाएगी, ये कानून है। उसने कानून बनाया है कि आप आग पर हाथ रखेंगे आपका हाथ जल जाएगा। वहां हम मसाल लेते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो अब हर एक इब्राहिम बन जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर बंदा बन जाएगा कि उसको आग नहीं जलाएगी। एक वो अलग बात है, इसका मतलब पीछे बता चुका हूं कि वो अपना कानून तब्दील नहीं करता, तो फिर वो क्या बात थी, वो अलग बात है, उसको अलग से समझने की जरूरत है। जहां यही बात है कि उसका कानून है कि आग ने जलाना, और जलाती हुई आपको नजर आ रही है, जगह जगह नजर आ रही है। एक तारीख का वाकया आपको इब्राहिम का अगर नजर आता है तो फिर इसका मतलब उसमें कोई और कहानी, जिस तरह और बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं, वो भी उस तरह कहानी बना दी गई है। आगे इसकी दलील और बात है, माल के नतायज में खुदा के कानून के मुताबिक मिलती। कानून खुदा का होता है, अमल बंदे का करना आपने। ले यह लेखा मन हलाका अन बेयनातिम व यहया मन हैया अन बेयनातिम, ये अनफाल की 42 में बड़ी मशहूर आयत है ये, ताकि जो हलाक होता है वो भी दलील और बुरहान की रूह से हलाक हो और जो जिंदा रहता है वो भी दलील और बुरहान की रूह से जिंदा रहे। काज एंड फैक्ट, यही जो ऊपर कानून बताया गया है कि तकलीफ और राहत क्या, अमल बंदे का, कानून अल्लाह का, इसके मुताबिक ही जिंदा रहना है, इसके मुताबिक ही मरना है। ना कोई बेगुनाह मुस्तबद हाकिम के गुस्से और जज्बा इंतकाम से सजा पाता है और ना ही मुजरम फिदिया कफारा या सफार से छूट सकता है, नहीं, यही कानून चलेगा। इसलिए इंसानों से कह दिया गया है कि वतकु यौमल्ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन व ला यकबालु मिनहा शफाअतुन व ला युखज़ु मिनहा अदलुन व लाहुम युनसरून। ये बकरा की 48 नंबर आयत है। ज़ुहूर नतायज के वक्त कोई शख्स किसी दूसरे के काम नहीं आ सकेगा,
जब नतीजा बोलता है, निकल आता है, सब कुछ आपने करवाने के बाद सामने खड़े हो गए, तो उस वक्त की बात है। कोई शख्स किसी दूसरे का काम नहीं आ सकेगा, ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही कोई मुआवजा देकर छूट सकेगा, ना ही मुजरिमीन की कोई मदद कर सकेगा जब जज फैसला सुनाता है। आपने गौर किया कानून वाले खुदा का तस्वर देकर कुरान करीम ने किस तरह मजहब को साइंस बना दिया। मैं आपको बारहा ये कहता आ रहा हूं कि कुरान का तस्वर, इस्लाम का तस्वर साइंसी अंदाज है, मैथमेटिकली अंदाज है, इसकी तरफ आते नहीं। इस मिजाज को हम समझते ही नहीं, इसके मुताबिक आते ही नहीं है। मिजाज शनास रसूल हम बन गए, लेकिन मिजाज शनास कुरान नहीं बन सके, इस तरफ आने ही नहीं दिया जाता। साइंस की खसूसियात क्या है, इसमें क्या है? पहले हर सबब अपना एक मुकर्रर नतीजा अफेक्ट पैदा करता है, साइंस की ये खसूसियत है, और इसमें कोई तगैर और तबद्दल नहीं कर सकता। कोई तजर्बा आप ले लें, उसमें जो उसका नतीजा निकला वही निकलना है। और साइंस इंकशाफ हकीकत इस तरह करती है कि इसमें किसी शख्स की ख्वाहिश, आरजू, मकसद, मफाद, जज्बात का कोई असर नहीं पड़ता। साइंस का ये है, और वो इन बातों से जरा भी मुतासर नहीं होती। अल्लाह मुतासर नहीं होता। किसी की ख्वाहिश, किसी की आरजू, किसी मकसद, किसी मफाद के तहत, जज्बात के तहत रो रो गिड़गड़ा के जो मर्जी करे, जो काम कर चुका है उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। खुदा का जो तस्वर कुरान पेश करता है, उसकी रूह से अमाल अपने नतायज भी उसी तरीक से मरतब करते हैं, और हक़ाइक़ का ज़हार भी उसी तरह किया गया है। यही वजह है कि खुदा ने कहा है कि हमारा ये पैगाम शायरी नहीं है, पोट्री नहीं है। एक कॉलरज, ये स्कॉलर है, ने एक जगह कहा है कि शायरी की जिद नसर नहीं है। हम लेते हैं, शायरी कहते हैं, दूसरी नसर कहते हैं। इज़हार ख्याल जो करते हैं, हम कहते हैं एक शायरी है, एक नसर है। मगर ये बंदा क्या कहता है? ये कहता है कि शायरी की जिद नसर नहीं है, साइंस है। अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि हमारा पैगाम शायरी नहीं है, तो फिर क्या है? वो साइंस है। ये कुरान शायरी नहीं, साइंस है। बस यही मैं बात करना, तो उसके अल्फाज थे, द एंटीथीसिस ऑफ पोट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस। वो जो मुहक्किक स्कॉलर, उसका जो फिक्रा था। तो बस मेरे भाइयों, ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था। ये दूसरी कड़ी थी, इंसान अल्लाह का और इंसान का ताल्लुक आपस में कैसा बनता है, क्या होना चाहिए। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म होगी। आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसकी दूसरी कड़ी है बहरहाल इंसान और कायनात का ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करूँगा अगली नशिस्त में इंशाल्लाह, कि इंसान के काम करने का अल्लाह से क्या ताल्लुक है। ये बात थोड़ा सा फर्क के साथ मैं कर रहा हूँ कि एक तो है ना इंसान का या अल्लाह का इंसान का आपस में ताल्लुक, एक वैसे क्या करना है, जैसे जैसे बताया कि अल्लाह की सफात है, उनको अपनाना है। हमने उनका विरद वजीफा तस्बीहात नहीं शुरू कर देनी। हम यही कर रहे हैं ना, हम बंदों को बताते हैं, अमल बैठे हुए हैं, पीर बैठे हुए हैं, ये फलां के लिए ये इसमें आजम है, ये इसी में आजम है, आप इस चीज का विरद करें, आप ये करें। मुझे किसी ने बताया तुम पर शैतान सवार है, तुम औज़बिल्लाह की तस्बीह किया करो। मैं कहा मैं इन तस्बीहात को मानता ही नहीं हूँ, तो फिर ये औज़बिल्लाह से मेरा शैतान कैसे भाग सकता है, जब मैं कायल ही नहीं हूँ इस चीज का। तो खैर ये है। मैं अब आगे थोड़ी सी बात तरमीम के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह के काम कर, बंदे के काम करने का, बंदे के काम करने का इससे कौन काम करवाता है और अल्लाह का क्या ताल्लुक आपस में बनता है। ये मैं मुख्तसर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे अर्ज करूंगा। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।